This is a conversation with Kurush Debu. He's an actor popularly known for his roles in the movies Munna Bhai MBBS, Lage Raho Munna Bhai, Kabhi Haan Kabhi Na, Taxi Number 911, Page 3, and popular TV shows like Shakalaka Boom Boom. In this conversation, we discuss his journey falling in love with acting. He provides tips and exercises for aspiring actors. How do you prepare for a character role? How do you make it iconic? We also dissect the work of director Rajkumar Hirani, Sanjay Dutt, Shah Rukh Khan, what makes them special. And then we also explore the role of improvisation in acting. This is No Time. If you like what you see, then do hit subscribe on YouTube, follow on Spotify, rate 5 stars and Apple Podcasts. This project takes a lot of my time, money, and effort. It's my full-time job now. So if you'd like to see it continue, please consider making a donation on Patreon or Anchor. You can join as a member on YouTube. You can buy Super Thanks on YouTube, or you can leave gifts on Instagram Reels. If not through monetary channels, do consider sharing these episodes, leaving your likes and comments. All forms of engagement, they really go a long way. For other forms of love and support, you can follow this channel on Instagram or Twitter, or follow me personally. And now, it's No Time. Check the mic and make sure it sound right, boys. Naseeruddin Shah ने एक बार कहा था, there's something inexplicable about acting. You walk onto stage as yourself, and by the time you walk off, you've lived a life that never belonged to you. That's magic. आपने एक बहुत interesting journey लिया into acting. Your father first used to work in the industry in Bombay. Then he went back to Gujarat. वहाँ उन्होंने काफ़ी plays write किए, direct किए, आपको cast किया as a child actor. When you grew up, you started studying marketing management, advertising. फिर आप बॉम्बे आए MBA के लिए. और बॉम्बे में आपने कुछ फिल्म मैगजीन उठाई, स्क्रीन और मायापुरी. उसमें आपने कुछ इंटरव्यूज पढ़े, फिर आपने डिसाइड किया मुझे एक्टिंग में जाना है. बिफोर वी टॉक अबाउट योर जर्नी, मुझे बस एक स्टेप पहले लेके आपसे पूछना है, व्हाई? व्हाट इज द मैजिक ऑफ सिनेमा एंड द मैजिक ऑफ एक्टिंग? एक्टिंग करते समय आपको क्या महसूस होता है? व्हाई डिड यू परस्यू एक्टिंग? व्हाट डज इट मीन टू यू? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने बहुत अच्छा रिसर्च किया मेरी बायोग्राफी और वॉट एवर यू कैन से माई जर्नी और माई टाइमलाइन और माई करियर टाइमलाइन. आपने बहुत अच्छा रिसर्च किया. ऑल्सो यू रिसर्च अबाउट माई डैड्स बैकग्राउंड एंड ऑल्सो माई चाइल्डहुड बैकग्राउंड. सो थैंक यू शैलज, आई अप्रिशिएट दैट. सी magic, it doesn't happen with one person. I think acting is just like a teamwork job. It's not an individual job. Like when you are doing monologue theater performance, of course you are the only actor. But while you are doing a play or while you are doing movies or any television or any medias, you are interacting with co-artist. Okay, then a director who gives the vision. Maybe you have done rehearsals or maybe there is no time and you have to do spontaneous performance, but normally they take at least one rehearsals nowadays because nobody wants to take the risk unless a star is going for another shoot or some urgency. Then they says, come on, let's go and shoot it. But otherwise normally one rehearsals to hota hi hai, at least for DOP, lighting, camera, focus, puller, for so many things. So एक rehearsals तो होता ही है, and then they do correction. So as you know that एक actor का खुद का experience नहीं होता है, वो जो माहौल होता है, you are living in a creative imagination world. वो वर्ल्ड में आपको जाना पड़ता है. और अभी तो आजकल मालूम है कि एक्शन कोरियोग्राफी इज सो एक्सपेंसिव एंड द सेट्स आर वेरी एक्सपेंसिव. लाइक दिस हैपेंड विद बाहुबली, दैट दे स्टार्टेड लॉट्स ऑफ VFX, वी कॉल ग्रीन स्क्रीन और व्हाट यू कॉल डिजिटल टेक्नोलॉजी, सो वी कॉल क्रोमा. So whenever you have to perform in chroma, you are losing the touch with the reality because you are not having the real set. वो environment ही नहीं बना है. हाँ, वो environment, वो sets आपके पास नहीं है. Then you have to imagine all circumstances, situation. Suppose के flood आ रहा है, earthquake हो रहा है,
या आप हाइट पे है, या आपके आसपास कुछ डायनासोर्स या क्रीचर्स है और सम क्रीचर्स आर चेजिंग यू, तो ये सब आपको पूरा इमेजिनेशन करना पड़ता है. सो एक्टर्स के लिए मतलब कहते हैं कि अगर आपके पास इमेजिनेशन नहीं है तो आप अच्छे एक्टर बन ही नहीं सकते, चाहे आप कितने भी अच्छे डायलॉग बोल लो. क्योंकि क्या होता है ना कि आप एक इल्यूजन स्टेज पे क्रिएट करते हैं या आप एक स्क्रीन पे करते हैं कैमरा के सामने. वो इल्यूजन क्रिएट करने के लिए यू हैव टू यूज योर 5 सेंसेस, योर आईज, नोज, ईयर्स, योर स्किन. ये जो 5 सेंसेस होती है, वो 5 सेंसेस से ही आप आपका एक्टिंग परफॉर्मेंस सुपर्ब दे सकते हो. और बाकी आपका लाइफ का जो ऑब्जर्वेशन होता है, आपका जो इमेजिनेशन होता है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर डालना पड़ता है, इन्वॉल्वमेंट डालना पड़ता है, फोकस, कॉन्सेंट्रेशन. देन द बेस्ट टीम वर्क जो होता है को आर्टिस्ट. सी, एक्टिंग में गिव एंड टेक इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने अभी नसीरुद्दीन शाह का एग्जाम्पल दिया, अगर मेरे सामने नसीरुद्दीन शाह या नाना पाटेकर ऐसे एक्टर के सामने मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मैं गारंटी देता हूँ कि मेरा परफॉर्मेंस भी मेरी जो कैपेसिटी है, मेरा जो कंफर्ट जोन है, उससे 2 कदम आगे जाएगा. वो आपको एनहांस करेंगे. वो एनहेंस करेंगे बिकॉज दे आर ग्रेट आर्टिस्ट. They are also involved in their creative imagination field where they excel in their performance. तो अगर सामने वाला का जो परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो आप भी गिव एंड टेक में इतने ही इन्वॉल्व हो जाता है. एंड एक केमिस्ट्री होती है 2 एक्टर्स के बीच में, दैट क्रिएट्स मैजिक. आप देखिए ना, अभी सैयारा का जो बोल रहे हैं या उसके पहले सनम तेरी कसम का बोल रहा है, वो फिल्म चली क्यों? तो मेन थिंग इज दैट हीरो और हीरोइन के बीच में केमिस्ट्री. और वो डायरेक्टर की भी केमिस्ट्री होती है हीरो हीरोइन के साथ, बट वो बिहाइंड द कर्टन, मतलब जो अनविजिबल है. जो केमिस्ट्री डायरेक्टर एक विजन क्रिएट करता है, जो इमेजिनेशन करता है, he is controlling actors and all other department, including DOP, lighting, all department. Finally, it's a director's call. So it's a teamwork. That teamwork gives you an illusion, imagination. ऑडियंस को मजबूर कर देगा कि ये एक्टिंग नहीं है. You are living that personality or that character in imaginative world, and audience believes there. Audience watching theater, cinema, they know this is all artificial. ये एक्टर है, ये मूवी सेट है, ये स्टोरी सब है, fake ये है, स्क्रीन प्ले है, ये डायलॉग है, they know everything. The thing is that आप ऑडियंस को इमेजिनेटिव वर्ल्ड में ले जाते हो. ऑडियंस रिलेट्स, एम्पैथाइज, सिंपैथाइज विद द सिचुएशन. और एक बार ऑडियंस का इन्वॉल्वमेंट वो पर्टिकुलर सीन, पर्टिकुलर सीक्वेंस, पर्टिकुलर स्टोरी के अंदर हो जाता है, देन यू आर कनेक्टिंग विद द ऑडियंस. यू आर मेकिंग योर परफॉर्मेंस फॉर द ऑडियंस, बट यू आर नॉट क्रिएटिंग गैलरी परफॉर्मेंस. वो एक जमाने में होता था. आई ब्लेम ऑल्सो पारसी थिएटर, क्योंकि जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री इवॉल्व हुई है, क्योंकि वो ज़माने में, अंग्रेज़ के ज़माने में जितने भी बेसिकली जो थिएटर्स होते थे, उनके जो प्रोड्यूसर्स होते थे वो पारसीज होते थे. फिर जो फिल्म इंडस्ट्री भी शुरू हुई थी, उसमें बहुत सारे पारसी फिल्म प्रोडक्शन थे. मेरे डैड भी डी बिल्ली मोरिया और ई बिल्ली मोरिया के साथ काम किया था. दैट वाज आल्सो पारसी प्रोडक्शन हाउस. तो पारसी का जो नेचुरली, वो ज़माने में तो साइलेंट मूवीज़ थे, तो वो ज़माने में थिएटर में ही डायलॉग्स यू कैन स्पीक. तो वो जो डायलॉग डिलीवरी थी, वो जो परफॉर्मेंस था, तो अभी भी जो
नेचुरली ये जो 4 खान लोग आए, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान एंड सैफ अली खान, उनमें एक चेंज क्या आया, उन्होंने जो डायलॉग डिलीवरी का जो मोल्ड था, जो पारसी थिएटर से जो चला आ रहा था, जैसे आप मुगले आजम देखो, सोहराब मोदी के सब पुकार और सब मूवीज देखो, वो जो एक डायलॉग डिलीवरी थी जिसके लिए ऑडियंस मूवीज देखने जाते थे, थिएटर के शोज देखने जाते थे, डायलॉग डिलीवरी वो इतना पावरफुल हो गया था, इतना इम्पैक्ट। राजकुमार सर, उनका जो मेजर परफॉर्मेंस है, आप उनका जो डायलॉग डिलीवरी निकाल दे तो यू फील बी चीटेड। कैसी डिलीवरी होती थी? वो जमाने में जो डिलीवरी जो होती थी उसमें क्या था कि मैं डायलॉग डिलीवरी को एनहेंस करूं, प्रोजेक्ट करो, एनहेंस करो, वो ऑडियंस तक पहुंचाए। और उसमें उन लोग का भी फॉल नहीं था। पारसी थिएटर में क्या होता था कि वो जमाने में जो साउंड की टेक्नोलॉजी थी वो इतनी एडवांस नहीं होती थी। यू हैव टू प्रोजेक्ट योर वॉइस के लास्ट जो रॉ होती है वो ऑडियंस को सुनाई दे। अगर उसको सुनाई नहीं देगा तो वो इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा, बिकॉज आप एकदम लास्ट गैलरी ऑडियंस हो तो आप थिएटर पे एक्टर के फेसिस के एक्सप्रेशन तो देख नहीं सकते। वो तो अभी थिएटर में टेक्नोलॉजी आया कि कुछ लोग वो बड़ा बड़ा स्टेडियम में थिएटर करते हैं पब्लिक शो, तो साथ में वो लोग टीवी का वो जो मॉनिटर रखते हैं या स्क्रीन रखते हैं, प्रोजेक्टर स्क्रीन रखते हैं, जिसके ऊपर आप एक्टर्स के क्लोजअप भी सेम टाइम देख सकते हैं। बट दैट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट कि वो जमाने में इवन दिस पीपल व्हाट यू से रोमन थिएटर्स जो होता था, ग्रीक थिएटर्स होता था, वो आकर जो सबसे पहले शेक्सपियर का, विलियम शेक्सपियर पहले एक डायलॉग हुक ऑडियंस को हुक में डाल देता था कि वो आकर कोई जो एंकर होता है या कोई भी सूत्रधार होता है या ऐसा एक डायलॉग्स देंगे या ऐसा कुछ सिचुएशन में डालेंगे तो वो ऑडियंस एनग्रॉस हो जाएंगे। एक बार ऑडियंस एनग्रॉस हो जाएंगे देन आप डायलॉग के साथ खेल सकते हैं। तो टू विन द ऑडियंस ये एक शैली पैदा हो गई थी, उन्हें चेंज कर। हाँ, अभी आमिर खान उन लोगों ने आए तो वो जो डायलॉग डिलीवरी का एक मोल्ड चलता था, चाहे शत्रुघ्न सिन्हा हो, चाहे सुनील दत्त हो, अमिताभ बच्चन हो, दिलीप कुमार हो, संजीव कुमार हो, आप कोई भी ग्रेट एक्टर ले लो, वो मोल्ड में थे और ऑडियंस को उनकी वही डायलॉग डिलीवरी चाहिए। जैसे शत्रुघ्न सिन्हा साहब और राजकुमार साहब की कभी भी, ये सुनील दत्त साहब, डैनी डेंजप्पा सर, आमने सामने उनके डायलॉग्स होते हैं, ऑडियंस वांटेड द स्पार्क्स। ये लोग कयामत से तक से आमिर खान, सलमान खान, मैंने प्यार किया, कभी हाँ कभी ना, शाहरुख खान कभी हाँ कभी ना, और उसके पहले की भी उसकी जो भी फिल्म्स आई थी वो 8 फिल्म्स ही उसने पहले की थी। शाहरुख ने दीवाना के पहले 8 फिल्म्स की थी, लेकिन वो रिलीज बाद में हुई थी। सो ही स्टार्टेड हिज करियर विद 8 फिल्म्स, उसके बाद वो कमर्शियल में आया था। तो उसमें भी आप उनके देखेंगे जो भी रवि कौल और सब जो भी उनके जो डायरेक्टर्स थे उनके साथ उसने परफॉर्म किया था, तो उसमें भी उसकी नेचुरल डायलॉग डिलीवरी थी। द थिंग इज दैट कि उन्होंने कैरेक्टर का जो भी परफॉर्मेंस था वो सटल कर दिया। ऐसा नहीं था, हॉलीवुड में तो सटल परफॉर्मेंस आप कितने सालों से देख रहे थे। मार्लोन ब्रांडो के टाइम, रॉबर्ट डी नीरो, जैक निकलसन, डस्टिन हॉफमैन, अल पचिनो, बिकॉज दोज पीपल वेर फ्रॉम स्टैटिस्टिकली मेथड एक्टिंग स्कूल पीपल। तो जो वहाँ का ली स्ट्रैसबर्ग और जो भी और भी 4 लोग थे जिनके साथ उन लोगों ने ट्रेनिंग लिया था, स्ट्रैसबर्ग और स्टैनिस्लैस के पास से, तो दूसरे लोग ने लिया था जो उनके गुरु थे। तो उनकी जो मेथड एक्टिंग थी उन्होंने सिखाया कि ये जो थिएटर में जो एक्टिंग हो रही है विच इज़ वेरी आर्टिफिशियल एंड यू हैव टू अप्लाई योर इमेजिनेशन एंड इन इमेजिनेशन यू हैव टू परफॉर्म दैट कैरेक्टर सो इट लुक्स लाइव। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा ना कि इतना एक नसीर सर ने बोला कि एक एक्सपीरियंस होता है ऑडियंस के लिए कि दे आर वॉचिंग एन इंडिविजुअल फ्रीली लाइव कैरेक्टर। तो वो स्टैनिस्लैस की मेथड एक्टिंग जो है उसको फॉलो करके हॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर्स ने, वहाँ भी पहले हमारी जैसी पारसी थिएटर जैसी एक्टिंग
जो सिनेमा में होती थी वो ऐसे ही चलती थी। और हमारे यहाँ वो ट्रेंड इसलिए चलता था क्योंकि वो ऑडियंस वो हिसाब से था। एक ज़माना था कि उस ज़माने में जो ऑडियंस था बेसिकली लोअर क्लास, मिडिल क्लास, दे आर डोमिनेटिंग द ऑडियंस। आज के ज़माने में आप देखेंगे मल्टीप्लेक्स में तो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और हायर क्लास, मतलब अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास, दे आर डोमिनेटिंग multiplexes now. वो सिंगल सिनेमा चले सिंगल गए हैं। सिनेमा चले गए। द रीजन इज दैट के दे कुड नॉट कोप अप द इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज आजकल आपको मल्टीप्लेक्स में इतनी सारी फैसिलिटीज मिले तो एक बेसिक हाइजीन होता है। थिएटर के अंदर, सिंगल थिएटर में वो मिसिंग था। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेट्रो सिनेमा, हीरो सिनेमा, जो वो एक ज़माने में सब ये थे, एम्पायर, वो नहीं बात कर रहा हूँ, पर एक जो नॉर्मल थिएटर था, इसके अंदर एक महिला वॉशरूम में नहीं जा सकती थी, या एक कोई हाइजीनिक पर्सन वॉशरूम में नहीं जा सकते। वो इतना डर्टी, गंदा, अनहाइजीनिक रहता था। दैट वाज वन ऑफ द इश्यू, हाइजीन यूनिट। फिर वो जो सीट पे बैठे थे, वो सीट के अंदर कभी कभी बग्स होते थे एंड हाइजीनिक बहुत कम हो गया था, बिकॉज थिएटर को मेंटेन करना बहुत महंगा हो गया था। ऑडियंस शिफ्टेड टू मल्टीप्लेक्स। उसकी वजह से वो एक्सेस टू दैट ऑडियंस इज गॉन, राइट? वो वर्किंग क्लास ऑडियंस। द सेकंड थिंग, द मेजर इश्यू कि हमारे ज़माने में 60s, 70s, 80s में कार बहुत कम होती थी हिंदुस्तान में। अभी क्या हो गया कि नया रेवोल्यूशन आ गया, नया जो लोअर क्लास था वो धीरे धीरे मिडिल क्लास में गए, मिडिल क्लास वाले अपर क्लास में गए, एक टेक्नो वर्ल्ड आ गया, कॉरपोरेट कल्चर आ गया, सबके पास पैसा आ गया। तो कार्स का अभी क्या हो गया कि एक ज़माने में एक फैमिली कार हुआ करती थी, अब अभी आप पैसे वाले हैं, 4 फैमिली मेंबर्स है, 4 की कार गाड़ी पे आ गई। और हर एक इंडिया की, हर एक कंट्री की इकोनॉमी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे निर्भर रहती है। जो अमेरिका इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन आया, उसके लिए 2 चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट थी। एक, हाईवे कल्चर, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने अच्छे हाईवेज बना लिए, जो हाईवेज बना लिए तो उनके लिए कार बन गई, कार बेचना आसान हो गया। हमारे हिंदुस्तान में वो ज़माने में हाईवेज का पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होता था। जब हमारा हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ तो हमारे यहाँ भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से कार आ गई। तो अब क्या है, सिंगल थिएटर्स डू नॉट हैव फैसिलिटी फॉर कार पार्किंग। वो ज़माने में बनाया था थिएटर, उनको थोड़ा मालूम था कि इतनी सारी कार जाएंगे। हाँ, वो ज़माने में मराठा मंदिर, विनर, ऑडियंस बदल गई। अब जो मूवी देख रही है, ऑडियंस बदल गई, ऑडियंस के पास पैसा आ गया, तो ऑडियंस वांट प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तो अभी क्या है, मल्टीप्लेक्स ज़्यादा करके मॉल कल्चर में ज़्यादा है। जहाँ मॉल है तो दोनों का क्या है कि एक इंटरवोवन जॉइंट इकोनॉमी है, जैसे इकोसिस्टम। एक मल्टीप्लेक्स है, वो इकोसिस्टम में वो फैमिली आएगा, सुबह कार रखेगा, पार्क करेगा, शॉपिंग करेगा, फिर वहाँ ही रेस्टोरेंट में खाएगा, वहाँ ही थिएटर में पिक्चर देखेंगे, फिर घूम फिर के जाएंगे। सो एक मॉल कल्चर की वजह से पब्लिक हाफ डे तो मिनिमम लेते ही लेते हैं, बिकॉज चिल्ड्रन। इट्स ऑल चेंज। मैं आपको एक फॉलोअप क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जब आपने आर्ट फिल्म की बात की, व्हेन यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम रोशन तनेजा के एक्टर स्टूडियो, जब आप ग्रेजुएट किए तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई अपनी पहली फिल्म के लिए, पर्सी। एंड आपने पुराने इंटरव्यू में कहा है कि व्हेन यू फर्स्ट गॉट द अपॉर्चुनिटी आप स्लाइटली हेजिटेंट थे क्योंकि इट वाज एन आर्ट फिल्म, राइट? क्योंकि उस जमाने में अनफॉर्चुनेटली एक लेबल लग जाता था कि अब ये आर्ट फिल्म का एक्टर बन गया, तो वो उस कैटेगरी में चले गए, फिर बिकम्स हार्डर फॉर यू टू कम आउट ऑफ दैट कैटेगरी। तो मेरे पास आपके लिए 2-3 सवाल है इधर। पहले एक्टिंग की बात करते हैं। यू जस्ट स्पोक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन गैलरी एक्टिंग एंड the nuanced acting, subtle acting. What is the difference? कि एक same scene लेते हैं, how would you perform that scene in an art film, and then how would you perform the same scene in a commercial film? What does filmy acting look like? So just forget about the external vision. आप ये भूल जाइए कि externally body language में आप कैसे perform करेंगे, आपका voice projection कैसा है. Just forget everything about it. जैसे अभी आपने बताया था नसीर सर का कि जो आर्ट होता है जिसके अंदर आपको एक कैरेक्टर स्टेज के ऊपर या कैमरा के सामने एक पर्सना इमेजिनेशन करके या क्रिएटिविटी करके एक क्रिएट करना पड़ता है, एंड यू हैव टू लीव
इन दैट कैरेक्टर एटलीस्ट डायरेक्टर बोलेगा एक्शन कट अभी तक, या आप एक बार मेकअप कर लिया, कॉस्ट्यूम पहन लिया, नाउ यू फील, you imagine yourself that now you are into the skin of that character. और जब तक पैकअप डायरेक्टर नहीं बोलता है, you live for that particular character on the sets. The moment you remove your costume and then you come to your senses that now you are Kurush Debu, you are not performing Dr. Rustam Pauri character. This is one thing. Secondly, those who are method actors, especially they are doing what you say, pivotal roles, quarterback roles, challenging roles, like डार्क नाइट में जो जोकर का रोल किया था हैट रिचर्ड्स के, जो भी उसका नाम है, हाँ, वो बेचारा गुजर गया। तो उसने अपनी सेल्फ को एक होटल रूम के अंदर बंद कर दिया था, डायरी लिखी थी, एंड डायरी लिखता था, वो फोटोग्राफ्स और वो जो भी उसकी मेथड थी, he was involved with that character. He completely isolated himself के उसको इन्फ्लुएंस ना करे बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर. Then he was living and वो जो कैरेक्टर अंदर वो लिविंग कर रहा था, तो जब उसने परफॉर्मेंस करने का चालू किया, वहां से लेकर फिल्म का शूट खत्म हुआ, वहां तक वो कैरेक्टर के अंदर जिया. सो अब आप सोचिए, आपकी एक खुद की एक पर्सनालिटी है, यू आर सेक्रीफाइसिंग योर ओन इंडिविजुअलिटी और योर पर्सनालिटी, एंड यू लीव दैट जोकर कैरेक्टर 24/7, 365 डेज या 6 months, वॉट एवर द प्रोसेस. क्योंकि फिल्म शूट होने से पहले भी उसका रिहर्सल्स होते हैं, प्री प्रोडक्शन के अंदर रीडिंग, वर्कशॉप होते हैं, देन रिहर्सल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, मॉक शूट होता है, देन दे विल सी कि इसमें क्या चेंजेस करना है, इम्प्रोवाइजेशन होता है. सो 6 महीना ये कैरेक्टर्स के अंदर जीते हैं. तो वैसे भी हमारे यहाँ नसीर सर, ओमपुरी सर, नॉट ओनली डैट, इवन संजीव कुमार सर, दिलीप कुमार सर, कुछ कैरेक्टर्स में जीते हैं. क्योंकि दिलीप कुमार सर के इंटरव्यू हम लोगों ने सुने थे, तो उन्होंने बोले थे कि बहुत सारे ट्रेजिक किंग, जो उसको ट्रेजिक किंग बोलते थे, ट्रेजेडी किंग, तो बहुत सारे ट्रेजेडी कैरेक्टर्स के अंदर उन्होंने वो कैरेक्टर में जीते, उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया था, एंड देन ही हैड टू टेक द हेल्प ऑफ द साइकाट्रिस्ट, एंड देन उन्होंने बोला कि देखो, अगर आपको इसको ब्रेक करना है, यू डू सम कॉमेडी रोल, सम एंटरटेनिंग फन रोल. सो उसने गोपी और बहुत सारी फिल्म की थी जिसके अंदर उसने कॉमेडी रोल्स भी, कैरेक्टर के मेंटल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है. मेंटल हेल्थ के लिए बोला कि अगर आप कॉमेडी रोल्स करेंगे तो आपका बॉडी में जो एक घुसा हुआ है कैरेक्टर, वो ही है, तो डेंजरस होता है, तो वो अटैच डिटैच होता है. तो जैसे मैंने बोला ना, आर्ट फिल्म के लिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया. अभी कमर्शियल फिल्म के लिए क्या होता है, इंटरनली तो वो एक्टर होना ही चाहिए. अमिताभ बच्चन सर कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस दे, लेकिन अगर ऑडियंस को उनको, जो मैं अभी का अमिताभ बच्चन सर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बच्चन सर की बात कर रहा हूं जब वो सुपरस्टार में एक के बाद एक फिल्म देते थे. नाउ इमेजिन, आर्टिस्ट को भी लगता है कि यार मैं एक ही किस्म का एंग्री यंग मैन रोल कर रहा हूं, मुझे कुछ अलग करना है. वो अलग करने के लिए उन्होंने रिसर्च किया मुकुल आनंद सर के साथ, और बोला कि ये दीनानाथ चौहान का जो कैरेक्टर है, उसके लिए मुझे एक बेस वॉइस, उनका बैरिटोन वॉइस है, तो वो बेस वॉइस निकालना चाहता है. सो बेस वॉइस के अंदर उन्होंने पूरा एक कैरेक्टर क्रिएट किया एंड परफॉर्म किया, विच वॉज आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर. जो भी क्रिटिक्स थे उन्होंने अप्रिशिएट किया, जो भी इंटेलेक्चुअल ऑडियंस है उन्होंने अप्रिशिएट किया, इंक्लूडिंग माई सेल्फ. और जब थिएटर में पहला शो लगा और जब ऑडियंस ने देखा कि यार समथिंग इज रॉन्ग, पहले तो ऑडियंस को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, एंड दे सडनली रियलाइज कि हमारा बच्चन साहब कहाँ है, अमिताभ बच्चन जो हमारा बैरिटोन वॉइस वाला, जो डायलॉग डिलीवरी में पूरा थिएटर हिला देता है, वो कहाँ है. एंड यू वोंट बिलीव इट
कितने थिएटर में सीटें तोड़ी हुई थी, कितने थिएटर में मोर्चा ले गए थे, कितना थिएटर में उन लोगों ने प्रोजेक्टर का जो ऑपरेटर होता है उसको बोला कि ये फिल्म बंद करो. एंड यू वोंट बिलीव इट, ऑडियंस की डिमांड के लिए अमिताभ बच्चन सर ने वापिस अपनी ओरिजिनल बैरिटोन वॉइस में डबिंग की. किया और वो रिलीज किया. मतलब कुछ थिएटर के अंदर बैरिटोन वॉइस चल रहा था मास ऑडियंस के लिए, और कुछ अच्छे जो थिएटर्स थे उसके अंदर वो जो बेस वॉइस में उन्होंने किया था वो चल रहा था. तो इतना ऑडियंस के ऊपर इन्फ्लुएंस होना पड़ता था. तो मतलब एक एक्टर है बच्चन सर, जिसको अगर विलन का रोल भी करना है तो वो रोल कर नहीं सकते, क्योंकि उसका जो लॉयल फैंस बोलेंगे हमारा बच्चन सर खून कैसे कर सकता है. जब उन्होंने एक बूम फिल्म में जो रोल किया था उसके बाद बहुत ऑडियंस ने क्रिटिसाइज किया था कि आपकी एक इमेज है, ये है. तो बच्चन सर ने बोला कि आई एम एन आर्टिस्ट. अब मैं वो जो 70s का जो मैं कर रहा हूँ, अभी मैं अलग अलग परफॉर्मेंस करके एक्सप्लोर करना चाहता हूँ. और संजय लीला बंसाली के साथ जो उन्होंने जो रानी मुखर्जी के साथ जो ब्लैक फिल्म की थी, आप इमेजिन कीजिए कि बच्चन सर ने एक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस उसमें दिया था, खाकी में बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था. इतनी अच्छी कैरेक्टर का परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है अलग अलग किस्म का. बिकॉज देन वो एक बर्डन नहीं रहा ना. पहले उनको बॉक्स ऑफिस शोल्डर पे कैरी करना पड़ता था. अभी बॉक्स ऑफिस का बोझ है वो जो मेन हीरो प्रोटैगनिस्ट स्टार है उनके ऊपर रहेंगे. बच्चन सर खेल सकते हैं इन कैरेक्टर्स खेल सकते हैं ये. सो कहने का मतलब क्या है कि जो मैंने आपको 2 एग्जांपल दिया, एक जोकर डार्क नाइट का जोकर का एग्जांपल दिया कि वो कैसे एक रोल को जीता है और वो कैसे परफॉर्म करता है, एंड ही वन बेस्ट सपोर्टिंग ऑस्कर अवार्ड, करेक्ट. और एक मैंने एग्जांपल आपको दिया कि जो एक्सटर्नलाइजेशन जो होता है, नाना पाटेकर की डायलॉग डिलीवरी, उनका जो एक बॉडी लैंग्वेज होता है, फिर एक अपना राजकुमार सर, शत्रुघ्न सिन्हा सर, दिलीप कुमार सर, संजीव कुमार सर हैड लिबर्टी कि वो अलग अलग कैरेक्टर परफॉर्म करने का उनको मौका मिल जाता. वो हीरो भी करते थे, विलन भी करते थे. बाकी वो जमाने में विलन करने के लिए बहुत रिलक्टेंट होते थे, नेगेटिव रोल करते थे. सुनील दत्त सर ने भी नेगेटिव रोल किए थे. बच्चन सर ने जब दीवार के पहले भी नेगेटिव रोल्स किए थे, बिकॉज वो जमाने में उनकी इमेज नहीं थी. जितेंद्र के साथ एक फिल्म थी, उसके अंदर उसने वो मर्डर करते हैं, आई थिंक वो जो उसका हीरोइन का बाप है या किसी को, ओम प्रकाश का या किसी का मर्डर. सो वो अलग ये था. तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप ऑडियंस के लिए परफॉर्म करते हैं तो आप एक इमेज का शिकार हो जाते हैं, आपको वो इमेज में जीना पड़ता है. नाउ मेरी जो फिल्म थी मुन्ना भाई MBBS, जिसमें मैंने डॉक्टर रुस्तम पावरी का किरदार किया, माई ट्रेजेडी इज दैट आज नॉर्मल ऑडियंस को पूछेंगे, नॉर्मल ऑडियंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटेलेक्चुअल ऑडियंस जो लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं, या जो एंकर्स होते हैं जिनको नॉलेज होता है कि तो मेरा नाम कुरुश डेबू है, वो उनको मालूम है. बट एक नॉर्मल इंसान मुझे जब भी बाहर भी देखता है, दे डोंट नो माई नेम कुरुश डेबू, दे नो माई नेम डॉक्टर रुस्तम पावरी. उनको इतना इमेज मेरा हो गया है कि रियल लाइफ में भी मैं डॉक्टर हूँ. ऐसा इंसिडेंट्स बहुत बार हुआ है, कॉल आए हैं, क्वेश्चन पूछे हैं. मेरे डायरेक्टर ने आपको बोला है कि असिस्टेंट डायरेक्टर ने बोला है कि भाई मेरे ब्रदर के साथ ये हुआ है तो मुझे क्या करना चाहिए. तो एज अ नॉर्मल पर्सन जितना मेरे पास नॉलेज है मैंने उसको लिया नहीं, लेकिन उसके लिए क्या मेडिसिन. भाई साहब मैं डॉक्टर, यू आर नॉट अ डॉक्टर. अब सोचिए कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर मेरे साथ काम कर रहा है, इनको भी ऐसा ही पता है कि मैं रियल लाइफ में भी डॉक्टर हूँ. मैं आपको इधर एक सवाल पूछना चाहता हूँ. आपने कई बार कहा है कि मुन्ना भाई और शोले ऐसी फिल्म है जिसमें सारे कैरेक्टर्स आइकॉनिक हैं. सर्किट, डॉक्टर अस्थाना, चिंकी, डॉक्टर रुस्तम, पप्पा, ये नाम सब जानते हैं, स्वामी, ये सब लोग जानते हैं. बट ये बहुत रेयरली होता है, क्योंकि मोस्ट फिल्म्स में ऐसा होता है कि अगर मैंने आपको बोला कि आपको पता है वो भी उस फिल्म में था, अच्छा वो उसका दोस्त बना था, मुझे तो याद भी नहीं. बट इन दीज फिल्म्स ऑल दीज कैरेक्टर्स आर मेमोरेबल. तो ऐसा क्या खास है इन मूवीज में कि यू रिमेंबर दीज कैरेक्टर्स? व्हाट इज द डायरेक्टर डन विद दीज कैरेक्टर्स इन पर्टिकुलर? जैसे अगर मैं डायरेक्टर हूँ और मुझे फिल्म बनानी है, what do I need to do for the specific characters to make sure they become iconic or memorable? I'll give you the example of opposite thing.
जो आपने बोला शोले और मुन्ना भाई एमबीबीएस, जिसके सारे कैरेक्टर्स इमॉर्टल है और जिस फिल्म की रिपीट वैल्यू अनलिमिटेड है. नाउ आई एम गिविंग यू डिफरेंट एग्जांपल. एक एक्टर को हमेशा 3 चीज होती है कि उसका परफॉर्मेंस अप्रिशिएट करे, उसको एक नेम और फेम मिले, क्योंकि इट्स अ ह्यूमन डिजायर. तो मेरा कहने का क्या था कि मैं जब कोई भी फिल्म करता था तो मुझे अरे यार ये फिल्म अच्छा लोग ने अप्रिशिएट किया है. झंकार बीट्स में मेरा काम बहुत अप्रिशिएट किया. एब्सेंट माइंडेड अपना लॉयर बना था यार, सब लोग बोले कि बहुत अच्छा किया. कभी हाँ कभी ना. हाँ कभी हाँ कभी ना. ये तो वो लोग जब फिल्म देखते हैं, फिल्म्स देख के बाहर आते बोलते हैं कि अरे अच्छा काम किया. कभी हाँ कभी ना में भी क्या हुआ कि कुंदन शाह की फिल्म थी, जाने भी दो यारों के डायरेक्टर थे, ये जो ये जिंदगी, नुक्कड़, मनोरंजन, बहुत सारी अच्छी अच्छी उन्होंने सीरियल्स बनाई थी. बिकॉज ऑफ डैट ऑडियंस नो कि ये एक ग्रेट डायरेक्टर है और उसकी ये फिल्म कभी हाँ कभी ना आ रही है. और वो फिल्म में शाहरुख खान मेन हीरो था, बराबर है. बराबर. उसके साथ 30 कैरेक्टर्स थे. कितने? 30 कैरेक्टर्स में एक कैरेक्टर था शाहरुख खान का बेस्ट फ्रेंड. यजदी. वो सिंपेटाइज करता है, एम्पेटाइज करता है विद यजदी कैरेक्टर. शाहरुख खान के साथ सुनील कैरेक्टर है. तो ये एक केमिस्ट्री थी, वो ऑडियंस को पसंद आई. लेकिन इतने अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स थे. गोगा कपूर का कैरेक्टर था, टीकू टलसानिया का कैरेक्टर था, नसीर भाई का था, सबका कैरेक्टर अच्छा था. अंजन श्रीवास्तव का कैरेक्टर अच्छा था. बिकॉज ऑफ डैट मैं खो गया था. मतलब जब फिल्म रिलीज हुई सबको याद रहा, नहीं तो मुझे बोलना पड़ता था कि कभी हाँ कभी ना में मैं शाहरुख खान का बेस्ट फ्रेंड बना था. और 6 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद लोग भूल गए. क्यों? बहुत सारे कैरेक्टर्स थे और बहुत सारी फिल्में आती है जाती है, भूल जाते हैं. फिर मुन्ना भाई में क्या? हाँ, अभी मैं कॉन्ट्रास्ट आपको बोलता हूं कि कुछ फिल्म आप बनाने जाओगे कि मुझे एक ब्लॉकबस्टर, रिपीट वैल्यू, सब इमॉर्टल कैरेक्टर्स वाली फिल्म बनानी है, आप कभी बना नहीं सकते. जब शोले बनाई थी रमेश सिप्पी सर ने या सलीम जावेद सर ने लिखी थी, इनको ये नहीं पता था कि मैं एक ग्रेट फिल्म बना रहा है. वो लोग बना रहे थे कि एक हम अच्छी बॉक्स ऑफिस पे कामयाब फिल्म बने. अब सोचिए, शोले फिल्म रिलीज हुई, इन्होंने सब कुछ नया दिया, न्यू टेक्नोलॉजी. मतलब हमारी फिल्म में जो भी टेक्नोलॉजी यूज होती थी, कैमरा में, लाइटिंग में, बैकग्राउंड म्यूजिक में, सब में, ऑफ कोर्स इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न मूवीज कल्चर. बट जो भी क्रिएटिविटी उन्होंने अंदर जो क्रिएट किया, दैट वाज समथिंग न्यू. गब्बर सिंह का कैरेक्टर नया था, उसकी डायलॉग डिलीवरी नई टाइप की थी, बहुत सारे. तो उस वक्त किसी को भी समझ में नहीं आया कि यार ये फिल्म रिलीज हुई है, व्हाई ऑडियंस इज नॉट पिकिंग अप दैट मूवी इंस्टेंटली. ये पिक्चर हिट क्यों नहीं गई? क्यों उसको? अच्छा, इनको इतना कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम हो गया था कि दे वर प्लानिंग टू रीशूट सर्टेन पोर्शंस एंड दे वर प्लानिंग कि चलो हम लोग निकलते हैं. सब लोग रेडी भी हो गए थे जाने के लिए, रीशूट के लिए. साउथ में ये शूट किया था ना इन लोगों ने, वहां चले गए थे. मंडे, मतलब वो लोग निकलने वाले थे मंडे को, बोला कि थोड़ा रुक जाते हैं. रमेश सिप्पी सर का इंस्टिंक्ट, थोड़ा रुक जाते हैं, देखते हैं 1-2 दिन में. और मंडे ट्यूसडे के बाद वो फिल्म पिकअप हुई एंड देन एवरीवेयर इट वाज लाइक ब्लॉकबस्टर. तो फिर वो शूट बूट का ये निकल गया. इनके बाद उन्होंने बोला कि चलो अभी हमने शोले बनाई है, हम वैसे ही ये शान बनाते हैं. शोले वाज द रूरल बैकड्रॉप, शान वाज द अर्बन बैकड्रॉप. वहाँ का जो विलन गब्बर सिंह है, हम यहाँ उसको शाकाल के जो भी है, हम उसको वो विलन देंगे, अर्बन विलन देंगे. उन्होंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई, बट जो उनका एक्सपेक्टेशन था, जो ऑडियंस का एक्सपेक्टेशन था, वो ऑडियंस का एक्सपेक्टेशन के हिसाब से यार वो शोले वाली बात नहीं बनी. तो क्या फर्क था कैरेक्टर्स में? कैरेक्टर्स में कुछ फर्क नहीं था, स्क्रिप्ट में भी कुछ नहीं फर्क था. वो जमाने में जो एंटरटेनमेंट फिल्म बनती थी, जो मसाला फिल्म बनती थी, जो मल्टी स्टार फिल्म बनती थी, वैसी ही वो फिल्म थी.
जो इंग्रेडिएंट्स दूसरी फिल्मों में है थे, वही यही फिल्म में भी वही था. There was nothing problem तो about ये it. कैरेक्टर्स इतने मेमोरेबल क्यों है? The reason is that कि आप एक फिल्म बनाकर रिलीज करते हैं, अगर मान लो कि शोले फिल्म नहीं बनी होती और यही फिल्म रिलीज हुई होती, तो ये फिल्म सुपर डुपर हिट जाती. क्यों? कि उसको एक बैगेज कैरी करना नहीं था. शोल्डर पे एक एक्स्ट्रा बैगेज जो शोले का लेकर डायरेक्टर, राइटर्स, मेन स्टार कास्ट अमिताभ बच्चन सर और ये वो लोग लेकर चले थे, वो यहाँ लेकर चलना नहीं पड़ता. अगर एक स्टैंड अलोन फिल्म आई होती शान, तो सुपर डुपर हिट जाती. बट लोगों के दिमाग में शोले ऐसी बैठ गई थी, उनको वो ही चाहिए, शोले का रिपीट. कि जितना शोले एक इमॉर्टल फिल्म है, मुगले आजम जैसी कि एक इमॉर्टल फिल्म है, मदर इंडिया, वैसी ही ये फिल्म बने. और हर एक फिल्म का एक अलग टोन होता है, जॉनर होता है. और ये शान जो है एक मसाला एंटरटेनमेंट फिल्म थी. उसमें कुछ ऐसी चीज नहीं थी जिससे आप कहें. अब शोले के अंदर जो कैरेक्टर्स थे उसमें डेप्थ है. हर एक कैरेक्टर की एक ठाकुर की स्टोरी थी, गब्बर सिंह की स्टोरी थी, देन वीरू जय की दोस्ती की जो एक स्टोरी थी, देन जया बच्चन मैडम की एक स्टोरी थी, बसंती की एक स्टोरी थी. सबकी अलग अलग ये स्टोरी इम्पोर्टेंट थी. है. ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज उन्होंने कैरेक्टर को ग्राफ में एक जो होते हैं ना कि बनाया था. अपना जो एक जया बच्चन का एक फ्लैशबैक लिया था उसके अंदर, जो कैसे वो चुलबुली थी और वो कैरेक्टर बताया था. तो ऑडियंस को मालूम था कि व्हेन शी वाज अ बैचलर, जब उसका मैरिज होने वाला था, तब उसकी पर्सनालिटी कैसी थी और एक विडो बनने के बाद उसकी पर्सनालिटी कैसी थी, वो फर्क था. लेट्स कम टू द पॉइंट. पॉइंट ये है कि जब मुन्ना भाई MBBS रिलीज हुई, उस वक्त मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ी. क्यों? नंबर 1, हम लोगों ने फिल्म बनाई कुछ ऑडियंस के लिए, ऐसे नहीं बनाई थी कि ये हमारी फिल्म सुपर डुपर हिट जाए. या एक अच्छी स्क्रिप्ट थी, हम स्क्रिप्ट पढ़ के भी हंसते थे, हम स्क्रिप्ट पढ़ के भी कह सकते कि ये पिक्चर हिट जाने वाली थी. मैं आपको एक एग्जांपल वो भी दे रहा हूँ. वीरू विनोद चोपड़ा सर हमारे लिए प्रीव्यू ट्रायल रखा था. आपने उनको जाके बोला था हाँ, कि कॉमेडी तो फिल्म इतनी होती है. मैंने बोला कि सर ये फिल्म बहुत अच्छी बनी है. तो बोला कि भाई प्रॉब्लम क्या है? सर अंदाज अपना अपना नहीं चली, कॉमेडी फिल्म ब्लॉकबस्टर नहीं बनती. हाँ, और बाद में टेलीविजन पे चली. तो उसने मुझे 2 चीज बोली थी. देखो कुरुश, हमें एक अच्छी फिल्म बनानी है और हमें एक अच्छी फिल्म ऑडियंस को देनी है, ये हमारे हाथ में है. हम लोगों ने अच्छा कर्मा किया है, हम लोग ने अच्छी फिल्म बनाई है. नाउ इट इज द जॉब ऑफ द गॉड कि वो बॉक्स ऑफिस पे मेहरबान हो, वो ऑडियंस हमारी फिल्म को इतना ही प्यार दे जितने प्यार से हमने अपना सर्जन किया है, बेबी का सर्जन किया है मुन्ना भाई MBBS, इतना ही प्यार दे. हमारी फिल्म फ्राइडे को रिलीज हुई. फ्राइडे सैटरडे 2 दिन डिस्ट्रीब्यूटर्स थोड़े नर्वस थे, जैसे शोले में कैसे नर्वस थे. विधु विनोद चोपड़ा सर वॉज गेटिंग मिक्स्ड रिएक्शन, मिक्स रिपोर्ट. उनको ऐसा भी लगा कि यार फिल्म अच्छी है, ये लोग कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स लोग मैनिपुलेटिव तो नहीं कर रहे हैं कुछ प्राइस नीचे करने के लिए, कि या कुछ भी हो सकता है, बिकॉज एवरीबडी इज अ बिजनेसमैन. बट थिएटर में से जो ऑडियंस निकलता था और वो ऑडियंस लोगों ने बाइट्स देने की जो शुरुआत की, वो न्यूज पे आने लगी. मतलब ऐसा नहीं है जो कुछ प्रीएम्प्ट बनाते हैं, अपने ही लोगों को बोलते हैं कि चलो ये दो और ये, नॉट प्रीएम्प्टिंग, जो जेन्युइन थी. और वो किस लोगों ने कवर किया था? न्यूज चैनल वाले ने. वो जब न्यूज पे आई और एक ऑरा क्रिएट हुआ, देन दे रियलाइज कि ये फिल्म ऑडियंस लोगों ने एक्सेप्ट कर ली है और नाउ दे आर नॉट गोइंग टू टर्न बैक. वो फिल्म हिट है. और ये फिल्म भी 3 इडियट्स जितनी सुपर डुपर हिट नहीं गई थी. 3 इडियट्स के टाइम में क्या था कि आमिर खान का एक तो चाइनीज मार्केट बहुत बड़ा था. आमिर खान सर अर्न मोर मनी फ्रॉम चाइना
import export market than from India, local. यहाँ आई थिंक उन्होंने करीबन 500 करोड़ बनाया था, क्या बनाया था मुझे आइडिया नहीं है. तो हमारी जो फिल्म थी वो कैटेगरी में नहीं आती थी. बहुत एक फिल्म का अपना इंडिविजुअलिटी थी. मुन्ना भाई MBBS मतलब पूरा फैमिली को कैप्चर कर लिया. दादा दादी, हस्बैंड वाइफ, चाचा चाची, जाने के जो एक अपना ये आता था ना, क्योंकि सास की बहू थी, वो ऑडियंस में कैसे पूरे बच्चे से लेकर ये, तो यहाँ भी बच्चे लोग ये. एंड सेकंडली कि जितना उसने बॉक्स ऑफिस पे कमाल किया उससे 4 गुना कमाल उन्होंने टेलीविजन पे किया. क्यों? उस फिल्म में ऐसी क्या खासियत है? लेट्स से मैं आपके पास एक स्टूडेंट बन के आया हूँ और आज का सब्जेक्ट है डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने क्या ऐसा खास किया था मुन्ना भाई में दैट इट हैज सच हाई रिपीट वैल्यू. नॉट जस्ट मुन्ना भाई, उनकी सारी फिल्में में बहुत हाई रिपीट वैल्यू है, टाइमलेस मूवीज. तो वो ऐसी क्या क्या चीज से करते हैं? इफ यू कैन पॉइंट देम आउट टू मी एज अ स्टूडेंट सो आई कैन आल्सो स्टार्ट डूइंग दैट. देखो, एक चीज होती है कि जॉर्ज लुकास भी अपनी आई थिंक 53 पेजेस की स्क्रिप्ट लेके सारे स्टूडियोज में गया था स्टार वॉर्स के लिए. सब स्टूडियोज ने रिजेक्ट किया था. फाइनली कुछ उसने ट्विक किया स्टार वॉर्स को और वापस स्टूडियो में जाकर बोला, और उसने बोला कि मैं एक फाइनेंस प्रोड्यूसर भी लाया हूँ तो वो इन्वेस्ट करेगा. सो देन दे स्टार्टेड दिस थिंग बिकॉज इट वाज अ न्यू थिंग. तो जब भी आप नई चीज़ लाते हैं तो आपको सामना करना पड़ता है. राजकुमार सर की वो पहली फिल्म थी. अच्छा, उसकी फिल्म बिकने के लिए, स्क्रिप्ट फिल्म बनाने के लिए बहुत बार उन्होंने स्ट्रगल किया था. एक टाइम ऐसा भी आया था, बोला कि चलो इसकी मैं टीवी सीरियल बना लूँ. वहाँ तक उसकी नौबत आ गई थी. विधु विनोद चोपड़ा सर ने ये फिल्म बनाने के लिए उसके 2 साल पहले से ये ट्राई किया था कि ये बनाना है, स्क्रिप्ट पे काम किया. और विधु विनोद चोपड़ा सर का एक है, जब तक उसको स्क्रिप्ट पे 100% लॉकिंग एक्सपीरियंस नहीं रहता है तब तक विधु विनोद चोपड़ा सर बोलते ही रहते हैं यू हैव टू रीड्राफ्ट, चाहे वो 30वां ड्राफ्ट हो, 60 ड्राफ्ट हो, वो रीड्राफ्ट बहुत करवाते हैं. हाँ, जो री राइटिंग होते हैं ना, तो जब उनको पता चलता है कि यस नाउ दिस इज द बेस्ट थिंग, और उसके बाद भी एक बार लॉक करने के बाद भी उनके अंदर करेक्शन तो होता ही रहता है. तो जब उन्होंने ये स्क्रिप्ट के लिए अप्रोच किया तो कुछ ऐसी वजह से ये फिल्म डिले हो गई. मुझे भी कास्ट किया था करीबन 1 साल या 9 मंथ्स पहले मुझे कास्ट कर दिया था, बट कुछ वजह से ये फिल्म डिले हो रही थी, कुछ इश्यूज की वजह से. सो एवरीबडी नोज अबाउट इट, आई कांट डिस्कस अबाउट इट. सो देन फाइनली जो होता है ना एक डायरेक्टर का फ्रस्ट्रेशन कि यार मेरी फिल्म अभी तक लॉन्च नहीं हो रही है, ये नहीं हो रही है. जब सारे जो सिचुएशंस होते हैं ना कि ऊपर वाला, जैसे मैं बोला ना, लक फैक्टर हेल्प करता है, लक फैक्टर हेल्प किया और उसकी फिल्म फ्लोर पे गई. उनको जितना वक्त मिला था उस पर उसने स्क्रिप्ट पे ज़्यादा काम किया, कैरेक्टर्स पे ज़्यादा काम किया, लुक पे ज़्यादा काम किया. और उस वक्त हम लोगों ने हर एक कैरेक्टर्स का लुक टेस्ट दिया था, हम लोगों को रिहर्सल्स करवाया था, रीडिंग करवाया था, समझाया था कि फिल्म के सारे कैरेक्टर्स इतने अच्छे क्यों बने. एक चीज होती है, आप एक फिल्म देखने के लिए जाते हैं, पहली बार आप जब देखते हैं तो नेचुरली जो स्टार का ऑरा होता है उसके अंदर आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं. जब आप शोले पहली बार फिल्म देखने जाते हैं तो नेचुरली आपका फोकस धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी और जया भादुरी पे रहेगा. ओके, फिर आप दूसरी बार देखने जाते हो तो आपका गब्बर सिंह और ठाकुर के ऊपर रहेगा. आप तीसरी बार देखने जाते हो तो असरानी, जगदीप, सचिन, सांभा, कालिया, हेके हंगल, जो भी कैरेक्टर है उसके ऊपर होता है. फिर आप दूसरी बार देखने जाओगे तो आपको बैकग्राउंड म्यूजिक या उसके जो कैमरा का जो शॉट्स है, उसकी जो फाइट इफेक्ट्स है, ये होता है. सो व्हेन यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ रिपीट वैल्यू, दैट गिव्स द बिल्ट अप. तो शोले की रिपीट वैल्यू से उसके कैरेक्टर्स इमॉर्टल हो गए. ऐसा नहीं है कि दूसरे फिल्म में कैरेक्टर्स इमॉर्टल नहीं है.
अंदाज अपना अपना में क्या हुआ? अंदाज अपना अपना थिएटर में आई, फिल्म चली, बट जितनी चलनी चाहिए, सुपर डुपर हिट होनी चाहिए, उतनी नहीं चली, क्योंकि उसका जो कॉमेडी जोनर था वो अलग था. टाइमिंग वॉज रॉन्ग. वो जमाने में इतनी कॉमेडी फिल्म चलती नहीं थी. वो जमाने में रोमांटिक फिल्म चलती थी, एक्शन फिल्म चलती थी, बट इतनी कॉमेडी नहीं चली. कॉमेडी का ट्रेंड पकड़ा हेरा फेरी से. बराबर है. हेरा फेरी इज अ बेंचमार्क फिल्म फॉर कॉमेडी गोज टू द मेन स्ट्रीम ब्लॉकबस्टर. जहां पहले एक्शन का डोमिनेटेड था, एक्शन को एक स्टेप्स नीचे करके कॉमेडी आगे गए. परेश रावल जी, अक्षय कुमार जी, ये सब लोग, प्रियादर्शन जी. देन उनकी जो भी है, एक होते हैं ना, प्रियादर्शन की धमाल आई, फिर बहुत सारी फिल्में आई, हंगामा आई. तो वो जो सब मोल्ड था, उसके राइटर्स जो थे नीरज वोरा और ये सब लोग, तो वो एक मोल्ड में वो लोग बनाते थे. मुन्ना भाई एमबीबीएस का मोल्ड अलग था. उन्होंने क्या किया कि आउट ऑफ फिश आउट ऑफ वाटर कैरेक्टर उसमें डाल दिया कि एक गुंडा है या एक गुड हार्टेड गुंडा है. अगर उसको हम एमबीबीएस का स्टूडेंट बना दें तो वो सिचुएशन कैसा रहेगा? तो यू नो दैट अफेक्ट्स नॉट ओनली द व्हाट यू से, जो हेरा फेरी में सब कैरेक्टर्स थे, ये सिचुएशन था, दैट वाज द कॉमेडी एंटरटेनमेंट. यहां क्या हुआ, दिस कैरेक्टर टच टू द हार्ट. और उनका जो बैकग्राउंड लिया था मेडिकल साइंस, नेचुरली हर एक इंसान को कभी ना कभी मेडिकल के साथ तो कांटेक्ट में रहना पड़ता है. फिर उन्होंने सब सिचुएशन ऑब्जर्व किया था कि मेडिकल लाइन में कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं, कैसी मेल प्रैक्टिस चलती है, कैसे इंसानियत की धज्जियां उड़ा देते हैं मेडिकल साइंस में. तो ये सब किया, और अब वो मेडिकल साइंस के अंदर आपने एक गुड हार्टेड गुंडा डाल दिया. नेचुरली गुंडा होता है तो क्या है, चल हाथ, चल ये ला, अरे सर इसका प्रॉब्लम है तो मेरे को क्या करने का. सो दैट इज द सेल्फ सेंटर गुंडा कैरेक्टर होता है. बट यहाँ एक गुड हार्टेड गुंडा मजबूरी में हुआ है, बिकॉज ही वॉज अनएम्प्लॉयमेंट. बम्बई में उसको कुछ काम नहीं मिला, तो मजबूरी में उसको गुंडागिरी करना पड़ा. और वो जो बोलते हैं ना कि आप लोअर क्लास चौल में रहता है, तो वहाँ सर्वाइवल के लिए आपको टफ बनना पड़ता है. वहाँ की जो महिला है वो गालियाँ भी देती है, दे हैव टू बी रफ, नहीं तो वो लोग सर्वाइव नहीं होते. कच्ची औरत होगी तो उसको खा जाएंगे, दूसरी औरत ही खा जाएगी, बिकॉज वहाँ रोज का पानी का प्रॉब्लम है. पानी के लिए लाइन में खड़ा रहो, फिर दूध लाने के लिए लाइन में खड़ा रहो, लाइन, ये चाहिए वो चाहिए, रेशन की लाइन. तो आप सोचिए महिला को कितना काम करना पड़ता है, घर का काम, बच्चों को संभालना, ये. तो फिर वो लोग इरिटेट नहीं हो जाते? एक सीमा रेखा होती है ना. तो यहाँ क्या था कि कंपेयर टू हेरा फेरी, यहाँ एक ह्यूमन टच, ह्यूमन बॉन्ड, विच एम्पैथाइज विथ ऑडियंस, विच सिंपैथाइज विथ ऑडियंस, ये एक नयापन था. ये चीज ऑडियंस के दिल में टच हो गया, क्योंकि उन्होंने ये सब ऑब्जर्व किया है. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या प्रॉब्लम होता है वो बताया. वो एक लड़का था, वो सुसाइड करने जाता है क्योंकि वो लव में फ्लॉप हुआ है. तो रियल लाइफ में भी कितने यंगस्टर्स है, जब लव में फ्लॉप होता है, कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, कुछ लोग एक क्या बोलते हैं कि डिप्रेशन मूड में चला जाते हैं. तो ऐसे फिर माँ बेटे का जो एक रिश्ता होता है, बॉन्ड, बाप और बेटे का, नेचुरली माँ और बेटे का रिश्ता अलग होता है. उनका जो केमिस्ट्री बॉन्ड होता है, माँ का अनकंडीशनल लव होता है. वो कितना भी मारेगी, एक सेकंड में उन लोग वापिस हंस के प्यार में हो जाएगा. बाप चांटा मारेगा तो बेटा 1-2 दिन हैंगओवर रहेगा. बाप ने मुझे चांटा मारा, अभी बाप ने ये बोला है मेरे को 9 बजे घर पे आ ही जाना पड़ेगा. वो दोस्त बोले चलना बैठना, नहीं यार, बाप ने मुझे मारा है भाई, बोला है कि 9 बजे घर पे आने का मतलब आने का और होमवर्क करने का. सो यू नो, फादर का बॉन्ड अलग होता है, माँ का बॉन्ड अलग होता है. तो इसमें दोनों बॉन्ड बताया, सुनील दत्त सर का, रोहिणी हत्तंगडी, दोनों का बॉन्ड बताया संजय दत्त के साथ. और वो जो कॉन्ट्रास्ट है वो रियल लाइफ में जीते हैं. हर एक
हर एक बेटा अपना बाप को रिकलेक्ट करेगा, बाप बेटे को रिकलेक्ट करेगा. सो ऑडियंस में एक एम्पैथी फैक्टर, सिंपैथी फैक्टर, एक को रिलेशन फैक्टर टच कर गया. मेडिकल साइंस का जो एनवायरनमेंट है, जो हर एक ह्यूमन के साथ लेना देना होता है, वो टच कर गया. और जो प्रॉब्लम्स ऑडियंस पब्लिक फेस करती है वो ही यहां बताया है. एंड इमोशंस कॉमेडी का तड़का के साथ, थ्रू कॉमेडी, थ्रू एंटरटेनमेंट. इट्स नॉट हैवी हैवी हैवी. उनकी ये खासियत है ना कि सैड सीन और कॉमेडी सीन साथ साथ हो सकते हैं, एंड यू फील बोथ वेरी स्ट्रांग. तो मुझे वही लगा कि मुन्ना भाई एमबीबीएस और डंकी में डिफरेंस क्या था. डंकी में ही स्टिक टू रियलिटी, वेयर हियर उन्होंने रियलिटी के साथ एंटरटेनमेंट का जो तड़का होता है, कॉमेडी का तड़का है, वो तो उनकी 3 इडियट्स में भी उनका ये था. लेकिन डंकी का सब्जेक्ट ऐसा था कि इसके अंदर आप कॉमेडी में नहीं खेल सकते थे, बिकॉज वहां लाइफ्स आर ऑन स्टेक्स. लोग मरते थे, मतलब बॉर्डर क्रॉसिंग में मरते थे, एक्सप्लॉइटेशन होता था, बहुत सारी चीज होता था. तो वो ह्यूमन लाइफ्स वेयर ऑन द स्टेक्स, स्लेवरी ऑन स्टेक्स, बहुत सारे. तो उसमें आप कॉमेडी से नहीं खेल सकता था. लेकिन क्या होता है कि ये डायरेक्टर सेम है जिसने मुन्ना भाई एमबीबीएस दी, लगे रहो मुन्ना भाई दी, 3 इडियट्स दिया, पीके दिया, संजू में भी उन्होंने कॉमेडी का टोन रखा था. तो डंकी वॉज अ वेरी सीरियस सब्जेक्ट. और जो उन्होंने जो ह्यूमर तो थी, वो जो बिल्डिंग पे प्लेन बताया था, जो लोग घर से बाहर जाते हैं, ह्यूमर थी, बट फिर भी वहां बहुत सारे इमोशंस सीरियस थे. तो मुन्ना भाई एमबीबीएस में कहा था कि मेरे पिताजी का कैरेक्टर था, वो एकदम सीरियस था. फिर इमीडिएटली जैसे ही वो सीरियसनेस सिचुएशन में खत्म होती है, चलना अरे बेटा खावानू लाओ ना. सो इमीडिएटली ऑडियंस, जो मैं रो रहा हूं, ऑडियंस रो रहे हैं, बिकॉज आई एम क्राइंग, ऑडियंस इज ऑल्सो क्राइंग कि यार ये लड़के के पास तो उसका बाप है, बाप चला जाएगा तो ये तो बैचलर आदमी है, उसका क्या होगा. इतने साल से दोनों का एक बॉन्ड है, बाप कितना खुश मिजाज है, रानी के पीछे पड़ा है, कैरम खेलता है, कितना ह्यूमर है, वो बच्चे को किडनैप किया है फिर भी वो गुंडों के साथ खेलता है. उसकी अपनी एक दुनिया है. एक ओल्ड एज होता है, ओल्ड एज में सबसे मेन प्रॉब्लम इज लोनलीनेस, विच टच टू द हार्ट. और रिपीट वैल्यू से हर एक कैरेक्टर फेमस हुआ. रिपीट वैल्यू इज नेसेसिटी टू इमॉर्टल ऑल कैरेक्टर्स. मुझे एक्टिंग पे भी फोकस करना है. यू सेड इन द पास्ट कि एक्टर संजय दत्त एक टेक देना पसंद करते हैं, एंड हिम एंड अरशद वारसी, उनको इम्प्रोवाइजेशन बहुत पसंद है. काफी सीन, जैसे जब वो बेड लाते हैं हॉस्पिटल में, ये बेड सोने के लिए नहीं है मामू, इम्प्रोवाइज सीन है. बराबर. जब आप संजय दत्त को देखते हैं, यू गेट दिस फीलिंग कि ही इज अ वेरी नेचुरल एक्टर, फील्स वेरी एफर्टलेस, कि एक टेक में उन्हें ऐसे बढ़िया सीन दे दिए. What did you learn from it? Do you feel it's a natural talent, or do you feel like there's a lot of training and technique behind what he does? अभी 2 चीज है. जैसे अभी हम लोग ने डिस्कस किया रिगार्डिंग कैरेक्टर एक्टिंग जो स्टेज और थिएटर में है, जैसे मैंने जोकर का एग्जांपल. हाँ जी. और बॉलीवुड में कुछ एक्टर्स है, दोज आर स्पॉन्टेनियस एक्टर्स. स्पॉन्टेनियस एक्टर में क्या होता है कि वो सेट पे आते हैं, लाइंस खाली याद कर दिया होता है और कुछ नहीं होता है. एंड देन जब डायरेक्टर बोलेगा, डायरेक्टर जैसे इंस्ट्रक्शन देगा, दे जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन, और एक ही टेक में वो लोग परफॉर्मेंस देंगे, बिकॉज दे वांट टू गिव स्पॉन्टेनिटी. संजय दत्त. So not only संजय दत्त, there are so many actors. सलमान खान. हाँ, सलमान खान भी है. सलमान खान का भी यही है कि वो ज्यादा रिहर्सल्स नहीं करते हैं. पर इन लोगों में क्या है कि एक आपको स्पॉन्टेनियस एक्टर होने के लिए भी आपके पास टैलेंट होना जरूरी है ना. अभी मान लो कि आई एम अ मेथड एक्टर, कि मैं प्रिपरेशन करके ही स्टेज पे जाता हूँ या तो कैमरा के सामने जाता हूँ, नहीं तो मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. मुझे लगेगा कि मैं ऑडियंस को चीट कर रहा हूँ. आई एम नॉट गिविंग 100% टू द ऑडियंस. सो आई एम अ डिफरेंट पर्सन. मैं मुन्ना भाई एमबीबीएस का कैरेक्टर स्क्रिप्ट सब पढ़ी थी, सबके कैरेक्टर्स भी मुझे याद है, सब कुछ याद था. लेकिन इन लोगों का क्या है कि एक तो मान लो आप, वी आर गिविंग संजय दत्त साहब का एग्जांपल. संजू भाई, ही इज द, उनके फादर टैलेंटेड सुनील दत्त,
मदर नरगिस दत्त, ये दोनों सबसे टैलेंटेड ग्रेटेस्ट एक्टर, Legends. उनके जमाने के लेजेंड, बराबर है। तो नेचुरली एक डीएनए, एक आपके जो जीन्स है आ जाता वो तो आ ही जाएंगे। हम लोग जीन्स में बोलते हैं ना कि भाई ये कैंसर की बीमारी, ये हार्ट अटैक की बीमारी, ये सब फैमिली से आई, तो अच्छी चीज भी फैमिली से आती है। हाँ, तो एक तो उनके अंदर ये है। दूसरा, आप एक नेचुरल टैलेंटेड आर्टिस्ट हो, तो ही वॉज अ स्पॉन्टेनियस एक्टर फ्रॉम बिगिनिंग ओनली। फेज आए उसमें, अलग अलग फेज आए, क्योंकि देखो महेश भट्ट सर ने नाम में, कब्जा में बहुत अच्छी एक्टिंग एक्सप्लॉइट किया उनकी। कब्जा के बाद सड़क पे, नाम में तो उसने ऐसा एक्सट्रैक्ट किया कि पहले अपने को ऐसा देखने को नहीं मिला। पहले भी परफॉर्म करते थे, लेकिन ये महेश भट्ट सर ने देखा कि दिस गाय इज टैलेंटेड। कुछ डायरेक्टर्स होते हैं कि दे आर कैपेबल टू एक्सट्रैक्ट गुड थिंग फ्रॉम दैट पर्सन। अभी एक बंदा है, मान लो कि वो एक्टर नहीं है, उसके पास एक्टिंग कराना है, दैट इज द चैलेंजिंग जॉब ऑफ द डायरेक्टर। चाइल्ड आर्टिस्ट के पास डायरेक्टर लोग ही अच्छी एक्टिंग करा सकता है। मैं और आप चाइल्ड आर्टिस्ट के पास अच्छी एक्टिंग नहीं करा सकते, बराबर, बिकॉज वी डोंट नो द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड। चाइल्ड साइकोलॉजी अपने को मालूम होता है, और एवरी चाइल्ड हैज अ इंडिविजुअल यूएसपी। हर एक की अपनी अपनी अलग वो डायरेक्टर पर्सनालिटी स्केल है कि आप वो पहचाने। डायरेक्टर कनेक्ट करता है, ही कनेक्ट्स। मैं जैसे मैंने बोला ना कि दो एक्टर्स के बीच में केमिस्ट्री होना जरूरी है, वैसे ही आपको डायरेक्टर के साथ केमिस्ट्री होना जरूरी है। तो वैसे ही मैंने आपको बताया कि क्या टैलेंट है संजू सर का। नंबर 1 टैलेंट, वो डायलॉग खुद याद भी नहीं करते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा मालूम है, मेकअप करने के लिए आते थे, असिस्टेंट डायरेक्टर आकर डायलॉग बोलते थे, उनको 2 बार बस पढ़ के सुना दिया। फिर वो पूछता है कि ये क्यों है, वापस 2 बार बोलता है रिपीट कर, फिर वो बोलेगा, फिर शत्रुघ्न सिन्हा खुद रिपीट करेगा। पहले 4 लाइन वो बोलेगा, मतलब 2-3 बार वो असिस्टेंट डायरेक्टर बोल गया इसका मेकअप चालू है, क्योंकि वो जमाने में गेटअप में दाढ़ी बाड़ी भी सब लगाना पड़ता था, बहुत सारी चीजें। तो वैसे ही एक मेडिकल साइंस का लेक्चर था जिसमें पैनल संजू सर को पूछता है, मुन्ना भाई को, कि इसका सवाल का जवाब दीजिए। तो वो रिहर्सल्स हम उनको करवाते हैं, क्योंकि मुन्ना भाई को तो कुछ पता नहीं है। तो वो बोलता है कि मैं रट्टा मारता हूँ ना, तो वो रट्टा मार रहा था। तो वो मालूम है, रात को आता है सीन और हम लोग छुप जाते हैं, कोई दरवाज़ा ठोकता है वॉचमैन के लिए, तो वो वाला सीन था। तो उसमें जो वर्ड्स थे मेडिकल साइंस के, मान लो कि ये जो 1 पेज मुझे रीडिंग नहीं दिया है और स्पॉन्टेनियस दिया है, जैसे टेलीविजन में होता है, टीवी सीरियल में लास्ट मोमेंट पे आपको सीन मिलता है, आपको परफॉर्म करना पड़ता है। वेब सीरीज की अलग बात है, वेब सीरीज में पूरी स्क्रिप्ट होता है। टीवी सीरीज में पहले स्टार्टिंग में स्क्रिप्ट होती है, एक बार ऑनलाइन चालू हो जाएगा, फिर टीआरपी के हिसाब से वो लोग स्क्रिप्ट बनाते हैं, बराबर है। तो अगर मुझे पुरुष, ये सीन है 1 पेज का मोनोलॉग है, ये आपका डॉक्टर का है, आपको बोलने का, जैसे ही मैं पकड़ूंगा, हाँ कर लूंगा, फिर जैसे ही वो टर्म्स पढ़ते जाऊंगा, मेडिकल टर्म्स, ये है वो है ये, अरे यार ये मेडिकल टर्म्स याद करना है, अरे सर थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम नहीं है, चलो जल्दी करो, नहीं तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके करेंगे करके। टीवी सीरियल में ऐसे, फिल्म में अलग बात है। तो वहाँ मेरे ख्याल से असिस्टेंट डायरेक्टर में उमा करके थी लड़की, तो वो आती थी, उसको डायलॉग बोलती थी, वो कैरम खेलता रहता था, संजू बाबा कैरम खेलता रहता था, सुनता था, फिर 2 बार वो बोलेगी, फिर वो रिपीट करता था, फिर वो बोलते चलो रिपीट करो, वो बोलेगी, फिर वो बोलेगा, संजू बाबा बोलेगा, वो करेक्शन करेगी। तो मेमोरी पावरफुल, डायलॉग्स याद रखने की मेमोरी पावरफुल, दैट इज द टैलेंट, ह्यूमन टैलेंट है संजू बाबा में। दूसरा कि वो जो परफॉर्म करता है, तो इतना साल का उनका एक्सपीरियंस है एक्टिंग का, तो वो एक्सपीरियंस काम लगता है। फिर उनकी रियल लाइफ का जो भी एक्सपीरियंस है, बिकॉज एक्टर गेट्स एक्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम व्हाट, आइदर फ्रॉम ऑब्जर्वेशन और फ्रॉम द कैरेक्टर स्टोरी और फ्रॉम योर रियल लाइफ एक्सपीरियंस। जैसे हम बोलते हैं ना, व्हाट इफ, एज इफ, व्हाट इफ आई एम अलेक्जेंडर, व्हाट इफ आई एम अकबर बादशाह,
सो दैट इज इमेजिनेशन. हाँ, व्हाट इफ जो हम लोग एक्टर लोग यूज करते हैं. सो व्हाट इफ इमेजिनेशन से होता है. और यहाँ क्या होता है कि उसका खुद का भी एक्सपीरियंस होता है. और फॉर हिम एक तो जो रोल है वो तो अपना टपोरी गुंडे का रोल है. और वो जो इमोशनल है वो तो उसने बहुत सारी फिल्मों में किया है. उसके पहले उसकी वो फिल्म आई थी वास्तव. वास्तव में उसके माँ के साथ कितने इमोशनल सीन्स थे. सो दैट Drawing मीन्स, from that. हाँ, सो दैट मीन्स के ही जस्ट हैज टू मेमोराइज द लाइन. तो वो स्पॉन्टेनिटी कैसे आती थी. लास्ट मोमेंट पे वो डायलॉग्स याद कर लेता था. उसको कैरेक्टर सब कुछ मालूम है बिकॉज ही राइट द स्क्रिप्ट एवरीथिंग, वो सब है. बट ये प्रोसेस है कि ही जस्ट गोज वन सीन एट अ टाइम. जो सीन करना है वो सीन पे काम करो. वो सीन के डायलॉग्स याद कर लो, चलो परफॉर्म करो. और राजकुमार हिरानी सर परफॉर्म करने के पहले रिहर्सल्स तो लेते ही थे. रिहर्सल्स में देख लेते थे, करेक्शन कर लेते थे. कुरुश तुम्हें ऐसा नहीं ऐसा करना है. संजू, ये आपका जो फेमस लाइन है, हाउ वुड आई नो सर, उन्होंने बोला था मैंने एक मीटर के साथ लिखा है, cadence के साथ लिखा है. सो वो मैं आता हूँ, ये खाली संजू का करेक्शन कर लेता हूँ. तो संजू बाबा सर क्या था कि सेट पे आते थे, एक टेक में स्पॉन्टेनियस दे देता था ना. उनके अंदर साइकोलॉजी ये रहती है कि देखो मैंने एक स्पॉन्टेनियस परफॉर्मेंस दिया और उन्होंने अपना थिएटर का जो सीन्स उन्होंने देखे हैं तो उनमें लगता है कि जो उसने फर्स्ट सीन दिया है वही एडिट में आता है और वही बेस्ट टेक रहता है. सो नॉर्मली दे प्रीफर कि रिहर्सल्स में वो लोग मैकेनिकल रिहर्सल्स करते हैं लाइंस का. फिर आपका जो व्हाट यू से हम लोग बोलते हैं कि आपकी जो लाइंस पे फोकस करना होता है, ये होता है. तो मार्क्स मेमोरी बोलते हैं. तो मार्क्स मेमोरी में क्या होता है, फोकस पुलर के लिए ये सब जो भी है वो मूवमेंट के लिए आपको मार्क्स पकड़ना होता है, मार्क्स एंड मेमोरी. तो वो करना होता है. तो वो उसके लिए एक मैकेनिकल रिहर्सल्स होता है और चेक कर लेते हैं कि आपका मीटर करेक्ट है कि नहीं. तो संजू सर एक ही एक्ट में एक ही सीन में परफेक्ट शॉट दे देते थे. और अगर कोई दूसरा एक्टर भूल गया तो होता था. लेकिन राजू सर क्या होता था, चलो एक सेफ ले लेते हैं. यार राजू ले लिया ना, नहीं यार एक सेफ तो लेना ही पड़ता है. ओके, तो एक सेफ हो जाता था. सो दैट मीन्स टोटल कितना, 2 टेक हो गए. तो एक बार मुझे कुछ डायरेक्टर ने एक्सप्लेन किया नहीं था. डायरेक्टर वाज सिटिंग आउटसाइड ऑन मॉनिटर और हम लोग एक ऑपरेशन थिएटर रूम में सीन कर रहे थे जिसमें वो डायरेक्ट बमन सर वो और उसको अपना दर्दी को काटने के वक्त हंस रहे हैं ना. तो वो पेशेंट एकदम डर जाता है कि वो हंस क्यों रहे, मेरा ऑपरेशन बराबर होगा नहीं, वो एक्सप्रेशन बराबर. तो उसके अंदर मेरा कुछ था वो, आई थिंक दूसरा सीन में कि मैं आकर बोलता हूँ कि सर डोंट वरी आई विल मैनेज इट. हाँ, बोला रुस्तम उनको लेके जाओ. मुन्ना भाई आकर बोलता है क्या अरे मुझे ये बताएंगे, कोई मुझे बताएगा कि एंट्रेंस टेस्ट कैसे देने का है, यहाँ एडमिशन लेने में के लिए रुस्तम लेके जाओ. तो मैं सर यू डोंट वरी आई विल मैनेज इट, इतना कह के. तो वो मुझे लगा कि आई डिडंट परफॉर्म वेल और मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ. तो वहाँ से राजू सर ने बोल दिया ओके गॉट इट, नेक्स्ट टेक, नेक्स्ट शॉट. तो मैं को सर, वहाँ तो आवाज़ गई नहीं. ठीक है, तो संजू बाजू में था. तो संजू बोला पुरुष यू वांट अनदर टेक. सर इट्स ओके, आप तो 1 टेक आर्टिस्ट है सर, मेरा थोड़ा अलग टाइप का है. यू वांट इट और नॉट, यू टेल मी. सर मिल जाएगा तो अच्छा है. तो उसने संजू बाबा ने ये नहीं बोला कि राजू कुरुश को एक टेक चाहिए दो, ऐसा नहीं बोला. संजू बाबा ने बोला राजू सर आई वांट 1 मोर टेक. राजू से बोला कि ओके नो इश्यू. तो वो तो माइक पे वहां से थे ना, तो बोला कि ठीक है. तो टेक दिया. तो मैंने बाद में थैंक यू बोला कि सर देखो मैं इसमें थोड़ा ये मुझे इनपुट करना. नहीं कुरुश यू डिड गुड और मेरा केमिस्ट्री अच्छा था. नाउ यू आर आस्किंग मी अबाउट द मीटर थिंग. तो मैं बस एक फॉलोअप भी ऐड करूं क्योंकि द डिलीवरी ऑफ द डायलॉग इज सो इम्पोर्टेंट. आपने एक पुराने इंटरव्यू में कहा था कि वन ऑफ द टफेस्ट रोल्स आई प्लेड इज पर्सी, बिकॉज उसमें the character had no punctuation marks in the delivery, no full stops or commas. That is in such a long journey. Such a long journey. Temul character. That's right. Sorry. So usme because there's no punctuation marks, just the delivery of the dialogue, not what you're saying. वो ही आपको कितना बता देता है कैरेक्टर के बारे में, राइट? सो हाउ इंपॉर्टेंट इज डिलीवरी. एक तो आपका डायलॉग हाउ वुड आई नो सर,
डायरेक्टर ने आपको बोला कि एक मीटर के साथ मैं लिखा दोनों, है? हाँ, मैं दोनों में मीटर था। उसका मीटर मैंने फिक्स किया था आफ्टर रीडिंग हिज नॉवेल, रॉइंटन मिस्ट्रीज नॉवेल एंड दैट। पहले लेट्स टॉक अबाउट दिस। यू नो, लाइक व्हेन आई हैव अ डायलॉग डिलीवरी सिस्टम, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं वो थिएटर डायलॉग डिलीवरी पे नहीं जाता हूँ, मैं नेचुरल डायलॉग डिलीवरी। अच्छा, नाउ द वर्ड इज हाउ वुड आई नो सर, हाउ वुड आई नो सर, मैं वही बोलूँगा, हाउ वुड आई नो सर। तो व्हेन आई वाज डूइंग रिहर्सल, सो आई सेड, मुन्ना, ये मुन्ना पास कैसे हुआ फर्स्ट पे, रुस्तम, हाउ वुड आई नो सर, हाउ वुड आई नो सर। तो डायरेक्टर आया, पुरुष, आई डोंट वांट हाउ वुड आई नो सर। बोले सर, मैं अपना नेचुरल बोल रहा हूँ और मैं एक्सप्रेशन भी नेचुरल, या बट मैंने डायलॉग का मीटर अलग रखा है। सर आप बताइए बेटा, हाउ वुड आई नो सर। अभी वो मुझे अजीब लगा, बिकॉज मैं अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि यार ये मेरे डायलॉग डिलीवरी नेचुरल दे पाऊंगा। तो मैं सर को बोला कि सर गिव मी 1 मिनट, मैं ये मीटर फिक्स करता हूँ मेरा, व्हाट यू से, क्योंकि सर ये टकिया कलाम है, बहुत बार ये आने वाला है, तो मुझे इट हैज टू कनेक्ट विथ माई मेंटल, व्हाट यू से, हार्ट एंड सोल, रिदम कि वो जो रिदम निकल रहा है, तो उसमें एक साइकोलॉजी है कि एक तो वो डीन से डरता है, उनको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उसको हेल्प कर रहा हूँ, और मुझे अपना इनोसेंस आर्टिफिशियल प्ले करना है, मुझे एक्टिंग करनी है। ऑल ऑफ दैट इज हाँ, जस्ट इन हाँ, द डिलीवरी, मुझे इनोसेंट करना है। और अभी मुझे एकदम अननोन मीटर दिया है, हाउ वुड आई नो सर। तो मैं बैठा, मतलब 1 मिनट दिया था क्योंकि सब लोग रेडी थे। तो मैंने वही सोचा कि अगर आकर एकदम कोई धमकाएगा, एकदम ये करेगा, तो जो मैं बोला था पहले, वही एक्सप्रेशन, वही चीज मैं यहां कैसे करेगा। तो एक्टर का क्या होता है कि पॉज से खेलो। तो मैंने क्या ग्रैब कर लिया, ओ राजू सर हैज गिवन मी द पॉज, लेट्स प्ले विद द पॉज। हाउ वुड आई नो सर, 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 हाउ वुड। तो तो एक पॉज को खेलेगा, पॉज के अंदर एक्टिंग डाल दो, आइदर आप इमोशंस का डाल दो या आप एक्टिंग करो कि मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, सो दैट कैन अफेक्ट द ऑडियंस। हाँ, तो अगर आपको कोई डायरेक्टर मीटर देता है, तो चाइल्ड आर्टिस्ट होगा तो वो तो उसके दिमाग में क्लटर नहीं है, वो तो जो भी परफॉर्म करेगा ऑडियंस को पसंद ही आएगा। बट हमारे दिमाग में इतना सारा क्लटर है, एक्टिंग इज अ मल्टीटास्किंग जॉब। हमारे कैमरा का फोकस पुलर जो होता है उसका मार्क पे जाना पड़ता है, ब्लॉकिंग होती है, दूसरे एक्टर्स की लाइट कवर नहीं करना चाहिए, एक्टर्स हमारा फेस पे लाइट लेनी चाहिए, देन दूसरा एक्टर्स का डायलॉग डिलीवरी होता है उसको ओवरलैपिंग नहीं करना चाहिए, बहुत सी सारी चीज़ है। और अगर ग्रुप एक्टिंग का, ग्रुप कैरेक्टर्स का जो सीन है, तो उसमें तो कितने सारे कैरेक्टर्स है, उनके साथ केमिस्ट्री मिलाना, मैचिंग करना, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, बराबर है। और फिर वो कैमरा के हिसाब से भी फॉलो करना पड़ता है। मान लो कि कैमरा में कोई दूसरा एक्टर ने एडजस्ट किया अलग, तो उसके साथ एडजस्ट करना पड़ता है। एक्टर एक्टिंग लाइन भूल गया और दूसरा स्पॉन्टेनियस बोल दिया, तो आपको रिएक्टिव में वो देना पड़ता है। बहुत सारी क्लटर चीज चलती रहती है, क्रिएटिव चीज चलती रहती है। सो दैट इज द रीजन व्हेन यू आर फोकसिंग, ऑलवेज रिमेंबर, फोकस ऑन वन थिंग एट अ वन टाइम। वन एक्शन होती है, डायलॉग डिलीवरी होती है, दैट इज ऑल्सो एक्शन। इट इज द वर्बल एक्शन, विजुअल एक्शन, योर फिजिकल एक्शन, वर्बल एक्शन इज योर बॉडी टोन, इमोशंस जो भी है, एंड मेंटल साइकोलॉजिकल एक्शन। ये तीन का, फिजिकल, मेंटल एंड वर्बल, वॉइस एक्टिंग, ये तीनों का समन्वय करके आपको ऑडियंस को तड़का मार के देना होता है।
तो वो देने के लिए आपको वन थिंग एट अ टाइम एक्शन रखना चाहिए. एक चीज करने में आप 2-4 चीज डाल देंगे ना तो ऑडियंस भी कंफ्यूज हो जाएगा. अगर वो रोने की एक्टिंग भी करेगा, बाद में कुछ और भी करता रहेगा, उसका बॉडी कुछ शोल्डर से कुछ ये करेगा, कुछ ये करेगा, बहुत सारी चीजें एट अ टाइम करेगा, तो ऑडियंस का कंसंट्रेशन टूट जाएगा. सच अ लॉन्ग जर्नी का मीटर मैंने खुद बनाया था. रोहिंटन मिस्त्री ने नॉवेल में क्या होता है कि व्हेन यू राइट, आप नॉवेल में कैरेक्टरिस्टिक्स का पैराग्राफ्स आता है, तो उसमें उसने लिखा था कि बचपन में कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स हुए थे, उसकी वजह से उसकी जो स्पीच पैटर्न थी वो स्पीच पैटर्न में गड़बड़ हो गई थी. तो ये बंदा एक ही ब्रीड में पूरा सेंटेंस बोलते हैं. अभी यही बोलता है कि सपोज के हाउ गिव मी 2 rupees money, I don't want that, give me, I want to secret for that. Gustav, I know what you did. So you know that without any dialogue delivery punctuation, he speaks in a one super fast express. तो उसमें कॉमा पंक्चुएशन कुछ नहीं होता है. नाउ अकॉर्डिंग टू द डायलॉग आई हैव टू डिलीवर इट. अभी एक एग्जांपल देता हूँ कि एंटर द ड्रैगन में ब्रूसली को बोला गया था कि आप नून चाकू जो घुमाते हैं ये इतना फास्ट घुमाते हो, वो कैमरा में रजिस्टर नहीं हो रहा है, कैमरा के अंदर ब्लैंक होता है. आप कोई भी पंखा, एग्जांपल देता हूँ, कोई भी मोटर का पंखा हो या कोई भी पेडेस्टल व्हील, आप पंखा देखोगे घूमेंगे तो आपको ट्रांसपेरेंट दिखेगा. आप उसकी विंग्स है, पाख नहीं दिखाई देगा, बराबर है ना. हाँ, अब पंखे की स्पीड के में आप खाली एक ऐसा मोशन पता चलेगा कि हाँ भाई कुछ चल रहा है पंखा, बट यू विल नॉट एबल टू सी द विंग्स अनलेस द फैन स्टॉप्स, बराबर. तो ब्रूसली का नून चाकू का स्पीड इतना फास्ट था, तो डीओपी आकर डायरेक्टर को बोलता है कि बॉस आई कांट सी नून चाकू एट ऑल, तो मैं ऑडियंस को कैसे बताऊंगा. देन डायरेक्टर went to Bruce Lee and told, I want slower speed. तो ब्रूस ली बोला कि यार मैं एक नून चाकू एक्सपर्ट हूँ, मैं अगर स्लोअर स्पीड लगाऊंगा तो जो मार्शल आर्ट स्टूडेंट्स होगा वो देखेगा तो बोलेगा कि यार ये नहीं है. हाँ ये बंदा तो सुपर स्टार, मतलब सुपर मार्शल आर्ट स्टार है, नॉट एक्टिंग स्टार की नहीं बोला. वो जमाने में ब्रूस ली इतना फेमस था एज अ मार्शल आर्ट चैंपियन. वी आर टॉकिंग अबाउट मार्शल आर्ट चैंपियन. As a martial art champion, how do you make it a slow nunchaku? तो डायरेक्टर ने बोला कि यू ट्रस्ट मी, मुझे जो स्पीड चाहिए वो स्पीड पे तू नूनचाकू चला, मैं तुझे एडिट में बताऊंगा कि तेरा नूनचाकू की स्पीड इतना ही है. सो देन ही डिक्रीज द स्पीड एंड तो ये विजुअल मीटर आपको एडजस्ट करना पड़ा कैमरा लेंस के लिए. सेम थिंग कि जब मैंने ये नोट पढ़ा तो मैंने रिहर्सल्स रीडिंग किया, डायलॉग्स नॉवेल में से भी लिया, स्क्रिप्ट में से भी लिया, और आई वॉज ट्राइंग टू कैप्चर द न्यूएंसेस कि मैं जो बोल रहा हूं, एम आई कनेक्टिंग विथ माई फिजिकल सेंस एंड माई मेंटल हेल्थ, एम आई कनेक्टिंग द मैडनेस, बिकॉज मेरा जो कैरेक्टर था वो मेंटली स्लो रिटार्डेड, नॉट द फुल रिटार्डेड, जो स्लो बोलते हैं ना, स्लो मेंटली स्लो रिटार्डेड पर्सन था, वो कैटेगरी में जाता है कि नहीं. तो वो सब रिहर्सल्स किया, प्रैक्टिस किया, सब कुछ किया. वहां भी सेम प्रॉब्लम हो गया ब्रूस ली जैसा. डायरेक्टर आया, पुरुष यू आर स्पीकिंग सो फास्ट, ऑडियंस वोंट अंडरस्टैंड. तो मैं बोला कि कैरेक्टर ऐसा ही लिखा है, या आई नो, बट यहाँ थोड़ा इमोशंस है, नॉर्मल डायलॉग डिलीवरी होता तो चल जाता, यहाँ जो तू बोल रहा है वो ऑडियंस को समझ में आना चाहिए. ऑडियंस बोलेगा कि साला अभी तक तो ये फास्ट बोला, अभी स्लो क्यों बोला. तो मैं उसके अंदर क्राइंग इमोशंस डाल देता हूं. आदमी जब रोता है तो उसकी जो डायलॉग डिलीवरी की पैटर्न होती है वो थोड़ी स्लो हो जाती है, क्योंकि हाँ ऐसा ये ब्रीडिंग होता है, आपको ऑक्सीजन लेने में तकलीफ होता है. तो वो सब चीज आप थोड़ा ऑब्जर्व करें ना
तो आप कन्विंस कर सकते हैं. यू हैव टू कन्विंस द ऑडियंस व्हाट यू आर सेइंग. I think it's fascinating, sir. हमारे समय का अंत आ रहा है, but I think we can keep talking about all these stories. You've provided so many great insights. I must thank you for it. जाने से पहले मुझे बस ये बताइए, ये क्या दिखता है आपको? What shape do you see? मुझे लग रहा है कि जो होता है ना, एक एनिमेशन में एक आइकॉनिक लोकेशन बताते हैं. जैसे पुराने ज़माने में सपोज के 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी के अंदर मान लो कि एक घर है जिसमें चिमनी है, जिसमें से धुआं निकल रहा है, और तो वो ज़माने में ऐसे घर बहुत होते हैं, और अभी भी एनिमेशन में ऐसे घर बहुत आते हैं. और कभी कभी हिस्टोरिकल मूवीज़ होते हैं या ड्रामा होते हैं, हिस्टोरिकल ड्रामा, उसमें भी ये ऐसे बहुत आते हैं. और उसका दूसरा ये, अगर मैं उसको पकड़ लूँ तो एक चर्च का आइकॉनिक क्रॉस भी हो जाता है. सब कुछ बनाया सर, ये आपने बिल्कुल पकड़ लिया. Before we close, rapid fire question, sir, what is the meaning of life? Life is nothing but an experience. Enjoy the experience. Sir, thank you so much. This has been a true privilege for me. Thank you. I'm telling you, you are one of the best anchor I have experienced. Really. I'm just not telling you the audience to flatter him. The thing is that anchor के लिए आजकल जो एक external qualities है वो अलग है. हार्डवर्क होना चाहिए. उन्होंने बहुत हार्डवर्क किया. He found each and everything, small details about my life, जो मुझे भी आज याद नहीं थी, उन्होंने याद कराया और मैं रिकलेक्ट किया. और सेकेंडली, आप जिस ऑडियंस के लिए व्हाट यू से इन डेप्थ इंटरव्यू जो बोलते हैं ना, एक इंटरव्यू एक एक्सटर्नल रहता है और एक इन डेप्थ इंटरव्यू रहता है, जिसके अंदर आप एक्टर के साथ या कोई भी आपका जो आपका इंटरव्यूई है, तो उनके साथ आप एक केमिस्ट्री जो डेवलप करते हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन यू एडजस्ट योर क्वेश्चन आंसर. आई रियली अप्रिशिएट. एंड thank you so much. Salaj, I want you to prosper as an anchor, as a producer, as a director, or as an actor in future, or whatever the venture you have ambition. I wish you career success for the future. All the best to you. Thank you so much, sir. God bless you.